Hello to all. This is Kendriya Vidyalaya number 1 Roorkee. Today we are celebrating National Pedestrian Day on 11th of January. A national coalition of NGOs has launched a nationwide campaign in India to demand the government of India to declare January 11th as National Pedestrian Day. Why the National Pedestrian Day is celebrated? The reason is to highlight the alarming rise in pedestrian fatalities. By this, the streets and the walking neighborhoods should be strengthened and made safe and inclusive from children to senior citizens and from senior citizen to the differentially abled people. We have to know the objectives, that we have to recognize the risk factors that make children susceptible to pedestrian injuries and fatalities. We have to identify the guidelines that parents and adults can apply that can keep children safe from pedestrian injury. Dear ones, why नेशनल पेडेस्ट्रियन डे इज सेलिब्रेटेड? इसका कारण है कि हमें उन रिस्क फैक्टर्स को जानना है जिसकी वजह से गली में चलते हुए या जहां हम नहीं चल पाते, बहुत सारे व्हीकल्स और पॉपुलेशन होने की वजह से उनको हम पहचाने, वहां हमें क्या रूल्स अप्लाई करने चाहिए जिससे कि पैदल यात्रियों को और उसमें चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग है या फिर कोई डिफरेंशियली एबल्ड पीपल है, उन सभी को आसानी हो जाए ये समझने में कि किस प्रकार से हम रोड क्रॉस करें और हमारी तरफ लोगों का ध्यान जाए जो गाड़ियों में बैठे हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पहचानने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को बताने के लिए हम नेशनल पेडेस्ट्रियन डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो इंक्रीजिंग फर्टिलिटीज़ है, जो मृत्यु दर है रोड्स पर क्रॉसिंग के टाइम पर, वो कम हो जाए। इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी टिप्स लेने होंगे। जहां हम नॉर्मल एक स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं, यदि मान लीजिए कोई कर्व नहीं है और किसी प्रकार का कोई फुटपाथ नहीं है, तो आपको क्या करना है, that you have to stop at the edge of the road. फिर आपको क्या करना है, that you have to stop, look left and right, then left again for moving the cars before you step into the street. If you see a car, you have to wait until it goes by. Then look left, पहले बाएं देखना है, फिर दायां देखना है, फिर से बायां देखना है, and again until no cars are coming. If a car is parked where you are crossing, look to make sure that there is no driver and there is no car moving, that the car is not running. Next, go to the edge of the car and you have to look again left, right, left to see if the car are coming. When no cars are coming, you have to walk. You should not run across the road and keep looking left, right, and left for the cars while you are crossing. So, the National Pedestrian Day is celebrated for the pedestrian, for the little kids, for the people who are walking on the road, and you know very well that everyone walks on the road. We never move only on vehicles. For that you have to know the rules, you have to know the signals. Dear ones, you have to use zebra crossing. You have to look at the both sides before crossing the road, and you should not run. Then you should never cross at bends and never cross between the stationary vehicles. जो भी मोड़ होते हैं वहाँ से आपको कभी क्रॉस नहीं करना है। बहुत ध्यान से जैसे रूल बताया है, बायां दायां फिर से बायां देखना है और आपको देखना है कि कोई व्हीकल खड़ा है तो फिर आपको किस प्रकार से क्रॉस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में से नहीं जाना है, आपको सबवे यूज करना है। जो जिब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं रोड्स के ऊपर, वो कौन सी क्रॉसिंग होती है वो आपको पहचानना है कि दैट दे आर द मार्क क्रॉस वॉक एंड दे आर मेड फॉर द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फॉर द सेफ्टी। एंड नॉर्मली
Pedestrians are afforded precedence over the vehicular traffic. आप देखते हैं कि जब हम पैदल जा रहे हैं और आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है. Although the significance of marking may vary by jurisdiction, they are known as zebra crossings and the strips resemble the coat of a zebra. क्योंकि वो जिब्रा के कोट के जैसी होती है इसलिए उनको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. ये जो रोड्स पर जिब्रा क्रॉसिंग होती है उनको भी हमें यूं ही क्रॉस नहीं कर देना है. यदि रोड पर प्रॉपर सिग्नल है तो आप सिग्नल का वेट करेंगे. जब व्हीकल सभी रुक जाते हैं तभी आप क्रॉस करते हैं. ट्रैफिक लाइट्स हम देखते हैं, समझते हैं, परंतु कुछ उसके बारे में मिथ्स भी होते हैं. तो उनको पहचानने के लिए हमें ट्रैफिक लाइट्स का पता होना चाहिए. ट्रैफिक लाइट्स चेंज कलर इन द सेम ऑर्डर एवरी टाइम इन मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. ट्रैफिक लाइट्स यूजुअली चेंज इन दिस ऑर्डर. जैसे हम नेशनल पेडेस्ट्रियन डे मना रहे हैं, भारत में भी इसी प्रकार से जो लाइट्स है, रेड लाइट वो क्या बताती है कि जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहा है उसको स्टॉप होना है. ग्रीन लाइट जब ऑन होती है तो ड्राइवर कैन स्टार्ट ड्राइविंग एंड देन कीप ड्राइविंग. वो ड्राइव करके क्रॉस करता है लाइट को, जो भी प्रतिबंध होता है उसको. येलो लाइट ऑन का मतलब होता है कि आप अब तैयार हो जाओ, यू कैन गो. परंतु साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब दूर से गाड़ी आ रही है और एकदम से क्या हो गया है, येलो लाइट हुई है, तो ड्राइवर को भी ये समझना है कि अब रेड लाइट भी हो सकती है इसके बाद में. तो वहाँ पर हमें अपनी स्पीड को कम करना है और रेड आने पर स्टॉप हो जाना है और ग्रीन आने पर आगे चलना है. पेडेस्ट्रियन डेथ्स अमंग चिल्ड्रन ज़्यादा होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टक इन स्ट्रीट्स एंड ड्राइववेज नियर देयर होम्स एंड डार्टिंग अबाउट between parked cars, walking along the edges of the road and crossing in the middle of the block or in front of a turning car. वहाँ ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको फर्टिलिटी हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान करने की ज़रूरत है. जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने चाइल्डहुड में दे क्रॉस द रोड्स एंड बाय दैट the childhood pedestrian injuries occur most often in residential area on the local roads that are straight, paved or dry. जो सीधे साधे हमें लगते हैं जो रोड्स हैं या फिर कोई खुदाई हो रखी है, वहाँ पर भी चाइल्डहुड को ज़्यादा इंजरी होने का खतरा रहता है. रेजिडेंशियल क्यों बोला है? जब हमें पता नहीं होता पीछे कौन खड़ा है कार के, आगे कौन है, बच्चों को टर्न नहीं करना आता है, बचना नहीं आता है, वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैटलिटीज़ होती है. मोर देन हाफ ऑफ द पेडेस्ट्रियन इंजरी अकर व्हेन व्हीकल इज बैकिंग अप. जब पीछे की तरफ व्हीकल चल रहा है, तो ऐसे में बच्चों को सीखना है कि किस प्रकार से आपको रोड्स क्रॉस करना है, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी आपको किस प्रकार से व्हीकल से बचना है. फॉर ऑल द एज ग्रुप्स traffic related pedestrian death is twice as likely in cities as in the country. High traffic volume, ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है रोड्स पर. A high number of parked cars on the street, higher posted speed limits, स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है रोड व्हीकल्स की. Absence of a divided highway, हाईवे पर कोई डिवीज़न नहीं होना कि कहाँ से क्रॉसिंग होगी, किस प्रकार से हमें सेफली मूव करना है, उन चीज़ों की एब्सेंस में. एंड फ्यू पेडेस्ट्रियन कंट्रोल डिवाइसेस सच एज क्रॉस वॉक्स, और कुछ पेडेस्ट्रियन जहाँ पर क्रॉस वॉक्स बने होते हैं, स्पेशली जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर लोग क्रॉस वॉक्स यूज़ नहीं करते, कोशिश करते हैं रोड्स को ही क्रॉस करने की. वहाँ पर ये सभी फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं पेडेस्ट्रियन इंजरी को. The pedestrian injury remains the second leading cause of unintentional injury related death rate among children ages 5 to 14. Unintentionally जो 5 से 14 साल के बच्चे हैं उनको ये इंजरी ज़्यादा होती है. एंड 40% of all young pedestrian fatalities occurred between 3 PM to 7 PM. शाम के समय ज़्यादा होती हैं. तो ऐसे में हम क्या करते हैं? The National Highway Traffic Safety Administration lists the following as risk factors for young children.
तो जो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ फैक्टर्स दिए हैं ताकि हम उनको समझ जाएं और उनको अप्लाई कर दें कि हम बच जाएंगे जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। बच्चे दे कैन नॉट जज speed or distance of vehicles moving towards them. They move quickly and can run into the street without warning. They are small and hard to see for the drivers, and they don't know safety rules and expect adults to watch out for them. बच्चों को जजमेंट नहीं आता है व्हीकल्स की स्पीड का, बिना किसी अलार्म के वो रोड से भाग जाते हैं, रोड को क्रॉस कर देते हैं। ऐसे में ड्राइवर्स को वो नहीं दिखाई देते और बच्चे ये भी सोचते हैं कि बड़े हमें देख लेंगे और वो रोड क्रॉस कर जाते हैं, परंतु ऐसा कई बार नहीं होता है और उन्हें फैटलिटीज़ होने की संभावना होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सेफ्टी लेनी है अपने बच्चों के लिए, दैट यू डू नॉट अलाउ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 टू क्रॉस द स्ट्रीट्स अलोन. Adult supervision is vital until a child demonstrates traffic skills and the judgments. You should require children to carry a flashlight at night, dawn, and the dusk. Reflective materials should be added to a child's clothing. Plain driveways, unfenced yards, and streets or parking lots should be prohibited. रोक देना है. Children should take the same routes to common destinations every time of the day. Parents should walk with their children to find the safest path. The most directed route with the fewest street crossing should be used. Okay. Now, according to National Highway Traffic Safety Administration, parents should teach the safe street crossing methods to their child. Children should take these safety measures and they have to be taught to cross with an adult or an older friend. Cross at an intersection where there are signal. Use the crosswalks when crossing near a corner. Watch for turning the vehicles. Stop at the curb. Look left, right, left and over the shoulder for traffic. Continue to look as you cross the street. Stop to look parked cars or other objects that block the view of the traffic. Let oncoming traffic pass, then look again before crossing. As you cross, make eye contact with the driver to make sure that you see. और आपको क्या ध्यान रखना है, always walk on the sidewalk if there is one. यदि है तो sidewalk पर ही चलना है. If no sidewalk, walk with facing traffic. If there is no sidewalk and you have to walk on the road, be sure to walk facing the traffic. आप ट्रैफिक की तरफ देखेंगे, उसके ड्राइवर की तरफ देखेंगे. ज़रूरी नहीं ड्राइवर आपको देख रहा है, परंतु यू हैव टू सी हिम, वो किधर मुड़ रहा है, किधर नहीं मुड़ रहा है. यू हैव टू बी सेफ, बी सीन, आप दिखाई देने चाहिए. आपके कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं दिन में, वो तो दिन में आपको बचा लेते हैं. रात को यदि आपने कोई फ्लैश लाइट इत्यादि नहीं लिया है अपने साथ, तो आपको क्या करना है, आप किसी शू, अपने कैप और जो जैकेट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स लगा सकते हैं ताकि आप विजिबल हो जाए या सामने ट्रैफिक को पता चल जाए कि देयर इज समथिंग और वो आपको बचाकर निकल जाए. तो आपको कभी भी रोड पर ऐसे ही रन नहीं करना है, आपको आई कांटेक्ट बनाना है. यू हैव टू बी ब्राइट. आपको रन नहीं करना है, बीच में से नहीं जाना है, अलर्ट रहना है और ध्यान करना है ट्रैफिक के मुड़ने तक. तो यू हैव टू स्टे ऑन वेल on the lit paths and always have your cell phone with you. Face traffic when running or walking. Earbud free or keep your music low जब आप क्रॉस कर रहे हो. Take water, पानी साथ होना चाहिए. Follow all traffic laws. Ensure visibility. Wear light or reflective clothing. Eye on the road or the path. आपका ध्यान बिल्कुल रोड पर होना चाहिए. Travel with identification. तो इस प्रकार से आप अपने आप को, अपने बच्चों को ज़्यादा बचा सकते हैं. और हमें जो रोड्स पर होने वाले मिथ हैं कि अब ग्रीन लाइट हो गया है तो आपको क्रॉसिंग सेफ है, नहीं. ग्रीन लाइट का मतलब है कि अब कार्स रन करने वाली हैं, आपको नहीं मुड़ना है, आपको स्टे हो जाना है. उनके जाने तक आपको वेट करना है, रेड लाइट आने का वेट करना है. और एक मिथ होता है कि आप क्रॉस वॉक पर सेफ हैं, उधर कोई व्हीकल नहीं आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी कोई व्हीकल आ सकता है.
बिकॉज जो ड्राइविंग कर रहा है उसको भी शायद किसी रूल का नहीं पता हो, तो आप क्रॉस वॉक पर भी बहुत ही ध्यान से चलेंगे। यदि आप सोचते हैं कि ड्राइवर आपको देख रहा है, बड़े आपको देख रहे हैं, नो, इट इज़ नॉट दैट ऑन द रोड। आपको अपनी सेफ्टी खुद से रखनी है। ड्राइवर स्टॉप हो जाएगा यदि आप क्रॉस वॉक पर हैं, तो ऐसा नहीं होता है कई बारी, और एंड वी मे फेटल। तो वी शुड लुक फॉर ऑल द मेजर्स कि आप किस प्रकार से अपने आप को सेव करते हैं। और यहाँ पर नेशनल पेडेस्ट्रियन डे भी इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि जो ड्राइव कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि जो क्रॉस वॉक्स होते हैं उनकी तरफ आपको नहीं जाना है। वो भी रूल्स के अंडर आता है कि दैट यू शुड नॉट गो टूवर्ड्स द क्रॉस वॉक्स। आपको स्पीड मेंटेन रखनी है अपनी, जल्दी में नहीं करना है, ठीक है। मिथ्स क्या होती है? वियरिंग वाइट एट नाइट मेक यू विजिबल टू ड्राइवर्स। आप कपड़े पहन लिए सफ़ेद तो आप विजिबल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाइट डज नॉट मेक यू दैट यू आर मोर विजिबल एट नाइट। यू मस्ट कैरी अ फ्लैश लाइट और वियर रेट्रो reflective clothing to be more visible to the drivers, and always walk facing the traffic. Common types of collisions between young pedestrian and motorists. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार डार्टिंग है इनटू द स्ट्रीट एट कॉर्नर एंड मिड ब्लॉक, वहाँ पर आप चोट लग सकती है। व्हीकल टर्निंग इनटू द पाथ ऑफ ए चाइल्ड, यदि चाइल्ड कहीं जा रहा है उसके रास्ते पे यदि व्हीकल आ गया है। चाइल्ड हिडन फ्रॉम व्यू बाय एन आइसक्रीम ट्रक, बच्चा छुप गया है, एक बड़ा व्हीकल सामने आ गया है तो नहीं दिखाई दिया एकदम से, जब वो ट्रक जाता है बच्चा निकल के आता है, पीछे से कोई छोटा व्हीकल उसको टक्कर लगा सकता है। चाइल्ड हिडन फ्रॉम द व्यू ऑफ बस, ड्राइवर डज नॉट स्टॉप, ठीक है। ऐसे में जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि तो सेफ्टी टिप्स फॉर ड्राइविंग क्या है, दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर द पेडेस्ट्रियन एवरीवेयर एट द टाइम्स. You have to take extra caution when driving in hard to see the conditions such as night time or the bad weather. आपको बहुत ध्यान रखना है कि सामने कोई चीज़ तो नहीं आ जाएगी, आप ड्राइव कर रहे हैं, everyone is safe. Slow down and you have to be prepared to stop while turning or otherwise entering to a crosswalk. जब आप किसी रोड पर जाते हैं या क्रॉस वॉकिंग्स होती हैं तो आपको ध्यान रखना है, you have to yield to pedestrian in crosswalks and stop well back from the crosswalk to give other vehicles an opportunity to see the crossing pedestrians so that they can stop too. Okay, now never pass the vehicle stopped at a crosswalk. They may be people crossing where you can't see. जो क्रॉस वॉक्स होती हैं वहाँ पे हमें नहीं दिखाई देता कि कोई व्यक्ति वहाँ से आ रहा है, तो आपको वहाँ से आपका व्हीकल पास नहीं करना है। नेवर ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और द ड्रग, आपको ड्रग्स नहीं लेने हैं। and you have to follow the speed limit especially around people on the street, in school zone और जो neighborhoods होते हैं where children are present, आपको बहुत ही ज़्यादा conscious रहना है। and you have to be cautious while backing up or look for the pedestrian. आपको ध्यान रखना है जब आप बैक कर रहे हैं गाड़ी को तो बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई आसपास बच्चा तो नहीं है, कोई और बड़ा बुजुर्ग तो नहीं है, कोई सीनियर सिटीज़न तो नहीं है, या फिर आपका सगी संबंधी तो नहीं है। तो अपने सभी सगी संबंधियों को सेफ रखने के लिए जो नेशनल कोलिएशन ऑफ NGOs ने लॉन्च किया है आपका नेशनल पेडेस्ट्रियन डे, उसे आप खुशी खुशी मनाएंगे और उसके रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि आपके सभी संबंधी बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद। फ्रॉम KV1 Roorkee, it was the presentation for you all that you should know about the National Pedestrian Day and you should keep your relatives safe. Thank you. Have a nice day.